Assalamu alaikum, Resham. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam, Amer. Thank you so much for having me. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn. Just for the audience, if you can tell me about yourself, how's everything? How's everything going? What's going in your life right now? And then we'll start the session. Everything's good. अभी तो I'm in Vancouver, British Columbia में, in Canada, and I moved here about 8 months ago for my master's degree, Masters of it's a Masters of Business Analytics. उससे पहले I've been a supply chain professional for about 5 years in Pakistan. I've worked in few big MNCs like PepsiCo, Levi Strauss, and Lotte Chilson. So Perfect. Lotte Chilson, by the way, I think yeah, I just wanted I to. think that like you have it's good that you have experience in Pakistan and now you're working and you're like studying in Canada as well. So it started off let's start with the market difference. Okay. I'm pretty much sure you have seen the market in Pakistan and you have seen the market in Canada as well. And both the dynamics are totally different. अगर मैं बात करता हूँ with regards to job market, with regards to hiring processes, with regards to एवरीथिंग बिकॉज पाकिस्तानियों का अगर मैं स्पेसिफिक समझूँ तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है अगर आप कनाडा या किसी भी मुल्क और चले गए लाइफ सॉर्टेड है बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव वो एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपका बाहर जाना लेकिन उसके बाद देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो let's start the conversation. What are the major things that you have seen in Pakistan? Because there are like two type of people. Number one, जो bachelor's करके masters करने आते हैं and they didn't start their professional career, but now you did your professional career for like almost 5 years, and now then you move to another country. What are the things, major factors that you are seeing that is difference in Pakistan and in Canada? And how you are taking it. Like it's a positive thing, it's a negative thing. How's everything going? That's a that's a fair question. I think काफी ज़्यादा differences हैं. When I was in Pakistan, um, उसके अंदर I noticed कि recruitment processes में सबसे पहले there's a huge difference. Yeah, there are a number of rounds in recruitment processes for Pakistani companies, और उसके अंदर जो है there's a lot of focus on technical skills. But in Canada, I've noticed कि यहाँ पे एक तो because you're competing against the world here, so context matters a lot. Your personality, soft skills, उसके ऊपर भी उतना ही focus है जितना technical skills के ऊपर है. राउंड्स कम होते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, रिक्रूटमेंट राउंड्स कम होते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस थोड़े से डिलेड होते हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, बट टफ होते हैं इन अ सेंस के यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, एंड जितने आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उस पर उतना ही फोकस आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स पे किया जाता है और आपकी पर्सनालिटी को देखने के लिए. So you can't be like robotic or mechanical in Pakistan. I think if you have that structure, you have that आपकी आपके बहुत टेक्निकल प्रोफिशिएंसी आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, you're hired, but यहाँ पे they need to see more of you. Totally understand the points that you have shared, and I think this is the major difference that we are seeing, not only in UAE, outside Pakistan, a lot of countries like Canada हो, UK हो, US हो, they usually believe that कि वो invest कर रहे होते हैं एक बंदे के ऊपर, not just for six months or a year. They wanted to have him for at least like 2 3 years. वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं तो उनका हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट है. Then comes to another point, what we are seeing right now in Pakistan, students usually don't have a pre-mindset. Like for example, they are like people कि चलो ठीक है graduation होगी उसके बाद नौकरी start करेंगे and then we'll see that. Assuming the fact you have been working for almost 5 years, ठीक है, and graduated in management sciences. So, how was your overall experience? What are the changes that you are seeing when you were graduated and now? Because what I personally see that market is different. आज से 5 6 साल पहले. Now there is a boom of AI. Everyone is doing that, and everyone really wanted to have resources who knows and who understand those things. Because every day-to-day task में आपकी अगर वो help out कर सकता है, अगर आपकी आपका जो है इस speed of work बढ़ सकता है, तो why not? So how you are seeing that कि क्या challenges हो सकते हैं 5 साल पहले चीजें बहुत different थी
structured wise. So from where did you started? How was your first experience when you move to another role? तो आपने उसमें क्या क्या चीजें देखी? What's the goal path? ठीक है, उसके बाद मुझे ये जरूर बताइएगा कि usually people are like do their bachelors and foreign से do their masters. But you waited. You do your bachelor's and you waited for 5 years, invest your time. और जब आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, आपको आदत हो जाती है, आपको पता होता है like I'm doing 9 to 5, it's going good, I'm doing great in my life, I'm earning good. So why leave everything aside, then go outside Pakistan? And I'm pretty much sure student life over there, it's not that easy. You need to manage your stuff. But for example, अगर मैं बात करता हूँ कि अ, जब आप काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, सो यू आर वर्किंग गुड, ठीक है, यू हैव अ टीम, यू नो हाउ टू डू थिंग्स। फिर आप कनाडा चले जाते हो और आपको पता चलता है कि नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माय ओन, एंड एवरीथिंग इंक्लूड्स कुकिंग, लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग, Mhm. every every small thing. You can't rely on everything else, ठीक है, आपको ये भी देखना होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी भी देखनी है, मुझे हर चीज देखनी है, तो इट्स अ 360 शिफ्ट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू डन योर बैचलर्स और आप रेडियो और आप फॉरेन मास्टर्स के लिए चले गए। सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ रेशम? व्हाट आर द थॉट प्रोसेस इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स, मूविंग टू कनाडा? इफ यू कैन शेयर योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। Um, I think जो उसके अंदर the thought process or the goal to move to Canada, it was primarily inspired by upskilling, जिसकी वजह से I decided to make that shift. I had a very comfortable life in Pakistan, और यहाँ पे आके पता चलता है कि how comfortable it was over there. Trust me, we live like kings. यहाँ पे kings and queens. अगर मैं यहाँ पे किसी foreigner को बताती हूँ and I explain like the kind of the sizes of our houses, the sizes of our rooms normally, कि वहाँ पे इतनी हाउस हेल्प अवेलेबल होती है, ड्राइविंग इज़ लाइक नॉर्मल, या तो हमारे लिए कोई मज़ाक की बात होती है, बट over here these things become luxuries, and you have to work really hard to make sure that you earn them, और आपको सेटल होने में वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बट द गोल over here was कि अपस्किल करना है। I had gained experience. I was hired straight out of university. लम्ब से मैंने ग्रेजुएट किया, वहाँ से मुझे डायरेक्टली उस टाइम आई वाज लकी इनफ कि मुझे अपना रेज्यूमे वगैरह आई डिडंट हैव टू शेयर इट बिकॉज it was shared by our career service office, and I was lucky enough to be hired by the company क्योंकि उस टाइम वो एक बिजनेस एनालिस्ट ढूंढ रहे थे, और आई वाज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब जो कि लॉटे बेवरेजेस में थी। एंड वहाँ पे आई सॉ कि इतना कोई खास काम हो नहीं रहा जो कोई मुझसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आई हैड जस्ट जॉइन स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि I want to add these skills for my future career path. So I kept on taking projects for myself जिससे मैं खुद उनसे सीख सकूं, and trust me, like वो एक इतना अच्छा decision था. Those were some of the major breakthroughs that helped me now. In they've helped me to settle in the job market here in Canada, and in university, which is super competitive. Um, तो उसके अंदर आई जस्ट स्टार्टेड लाइक आई रिमेंबर उस टाइम पे एक प्रोडक्ट था मिल्कीज. आपने मिल्कीज ट्राई किया बाय द वे? It's a इट्स biscuit, अ right? नो It's नो a it's a beverage, it's a beverage. No, I don't think um, so. अच्छा But वो it's आई like एम श्योर नहीं किया होगा, इट वाज it's अ वेरी similar to स्मॉल. it's similar to something like Pepsi, 7 Up, something like that. हाँ हाँ हाँ, इट्स सिमिलर टू उस टाइम उसको इक्वेट किया जा रहा था विद लाइक वो जो जिंजर अर्ल टाइप चीजें होती हैं, या रेड Oh, बुल it's like होती है, Schweppes, एनर्जी ड्रिंक्स की Schweppes तरह. वगैरह, ginger या ale जैसी या होती, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम उसको मार्केट किया जा रहा था, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा था और कोरिया से इंट्रोड्यूस हो रहा था, सो इट हम्म। वाज अ कोरियन, वेरी पॉपुलर, इट्स वेरी पॉपुलर इन कोरिया, एंड लोगों को मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स बड़ी पसंद होती हैं. और उस तरह के फ्लेवर्स यहाँ पे बहुत मिलते भी हैं, और वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च हो रहा था थ्रू लॉटे बेवरेजेस, अ सब्सिडरी दैट दे एक्वायर्ड. अब मसला ये था कि पाकिस्तान में जिस तरह
हमारी कंपनी उसको मार्केट करना चाह रही थी, वो एक बेवरेज की तरह था। बट जिस तरह का हमारा जो पाकिस्तान में एक दूध सोडा, आपको पता है, इट्स सो सो कॉमन देयर इन हम्म। पाकिस्तान। तो वो उसको ना a lot of people had very negative remarks, और वो उस तरह के व्यूज दे रहे थे, उसके बारे में रिव्यूज दे रहे थे। आई वाज स्ट्रेट आउट ऑफ लम्स, और मुझे थोड़ा बहुत ही आता था उस टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आई हैड एन इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ के अच्छा, मैंने वहाँ के कुछ रिव्यूज थे, एक फेसबुक पेज होता था, उसके ऊपर ये लोग ना नए ड्रिंक्स को रिव्यू करते थे। डाउनलोडेड दैट डेटा, एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस रन किया, जस्ट आइडेंटिफाइड सम कीवर्ड्स, एंड आई फाउंड आउट कि लोग इसको दूध सोडा के साथ इक्वेट कर रहे हैं। लाइक दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक योगर्ट, लाइक बिटर, इस तरह के लफ्ज आ रहे हैं। तो एक तो उनको बुरा लग रहा है, फिर इतना बुरा इसलिए लग रहा है बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। हम्म। तो बस ये मैंने छोटा सा एनालिसिस रन किया, और फिर मुझे पता चला कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा परसेप्शन गैप है इन द मार्केटिंग एंड uh, and what customers actually want. So what we need is like we need to investigate this. हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से बात की, मैंने खुद लोगों को कॉल्स करना शुरू कर दी कि अच्छा जी, आपको क्यों इतना डिफरेंस, वो सिमिलैरिटी लग रही है विद दूध सोडा। तो पता चला कि जो कलर ऑफ द ड्रिंक है, इट्स आइवरी वाइट, तो लोग उसको मिल्क के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और जो पैकेजिंग है, इट्स लाइक स्काई ब्लू, सो हम उसको, मतलब वो जो बच्चों के लिए ड्रिंक्स होती हैं उसके साथ एसोसिएट करें। तो जब उनको डिफरेंट चीज़ें दी, जो डिफरेंट बेवरेजेस दिए, तो पता चला कि ओ अच्छा, दिस वाज इट वाज काइंड ऑफ एन ए बी टेस्ट इन हाइंडसाइट जो कि मैंने किया। बट आई रियलाइज द स्कोप एट दैट टाइम कि अच्छा, एक इतने से डेटा सेट से इतनी बड़ी बात पता चल गई कि एक कैंपेन जो कि फेल हो रही थी, इट वाज टर्न्ड अराउंड इन अ मैटर ऑफ 6 months, एंड दैट वाज द स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, जिसका मैंने शायद 2-3 कोर्सेज लिए होंगे लम्स में, और उसकी स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस था। लर्निंग द टूल वाज अ ह्यूज प्रायोरिटी एट लम्स, बट देन इम्प्लीमेंटिंग इट एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट इन अ रियल लाइफ सेटिंग, दैट इज समथिंग आई वांटेड टू लर्न। So I think that is something I made a focus. मतलब उसके बाद I joined Levi's in supply chain, और I got to work a lot again in data, but उसके अंदर जो level of application है ना, उतनी autonomy नहीं होती आपके पास। अब वो वाली autonomy is here in Canada. Like there's a huge culture of analytics, और I think one of the best places to study. तो जो मेरी motivation थी वो ये थी कि figure out only the top 3 यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर ही अप्लाई करना है, उसी के अंदर से देखना है wherever I want to pursue my goal। और फिर उसके अंदर आई फाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि यहाँ की टॉप 3 के अंदर है। एंड ऑनेस्टली इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अप स्किलिंग के लिहाज से जो चीज़ें सीखी हैं, जो जिस तरह के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पे मिले हैं, एंड द ओपननेस ऑफ पीपल टू लेट यू डू दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इज समथिंग जो कि आपको आई थिंक हर जगह नहीं मिलती। Perfect. You just highlighted that you graduated from LUMS. There is a very sort of a misconception कि ठीक है भाई, आपने तो LUMS या IBA से पढ़ा है या आपने IBS से पढ़ा है तो आपको तो जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है। इसके थोड़े से आई टेक इट इन अ डिफरेंट वे। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि लम्स आईबीए या टॉप टियर यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान में फायदा ये होता है कि इनका एलुमनाई सर्कल बहुत बड़ा होता है। एंड यस, कंपनीज यूजली रियली वांट बिग नेम्स, ताकि उनको पता होता है कि यार उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज में ये चीजें सीखी होंगी, एंड उनको फिर उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर स्टूडेंट का बहुत अलग होता है। बट आई डू हैव फ्रेंड्स हु स्टडीड इन लम्स एंड आईपीएन, जब वो बाहर गए अपने मास्टर्स के लिए, एंड दे वर लाइक यार, आप कहीं से भी पढ़ लो, योर फर्स्ट डे इन द यूनिवर्सिटी एंड यू आर टोटली जीरो, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत हम्म। फास्ट पेस हैं। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा। ठीक है। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आप बेशक आईबीए से पढ़े हो, आपने लम से पढ़ा, आपने किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ा हो, व्हेन यू मूव टू अनदर कंट्री यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कुछ डेमोग्राफिक्स होते हैं जो बड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपका कल्चरल शॉक होता है आपको, कि आपको वहाँ पे अगर आपकी 30-40 बच्चों की क्लास है, आई एम प्रीटी मच श्योर एक या दो के अलावा कोई इंडियन पाकिस्तानी वहाँ नहीं होंगे। और अगर होंगे भी तो वो किसी और रीजन से आए हुए होंगे, यूरोप, चाइनीज और एनी अदर कंट्री। ठीक है, एक तो वो शौक होता है। दूसरा ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ की रियलिटी है क्या।
ठीक है, हर किसी को ये तो करना है कि ठीक है हमें मास्टर्स बाहर से करना है, but it's not that easy. I'm pretty much sure you have done your own research before you go there, क्योंकि आपको पता था कि यार ठीक है, this is the field that I really wanted to be in, and why not I do it from one of the finest universities in the world, or maybe in Canada. ठीक है, so आपने जो स्ट्रक्चर देखा, but I'm pretty much sure student life के अपने perks and benefits हैं. How's the student life look like over there? Is it easy? What are the key pointers that you have seen throughout your time frame जितने टाइम से आप कनाडा में हैं? क्या यही कुछ pointers हैं? Students should take care of that before moving to any other country. That would help people who really wanted to move to another country just for their masters or for their graduation. सो जब मैंने लम्ब से ग्रेजुएट किया तो मुझे लग रहा था कि मैंने पता नहीं कौन सी चीज़ें किस तरह से ये टाइम गुजारा है, बिकॉज इट वाज सो सो कम्पिटिटिव एंड आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय जीपीए एंड एंड पे लग रहा था कि ऑनेस्टली कुछ बाल भी झड़ गए हैं और बड़ी थोड़े सा आई gained a little bit of years in my age just to get to a good GPA from lumps and उसका benefit भी है कि अच्छा ठीक है, मतलब जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो I think a lot of people care about your grades as well. But then I moved to Canada, and ये यहाँ का one of the it's not only among the top three in this, like universities in Canada, but it's also one of the most difficult in throughout the country. So ये जो program है उसके अंदर you're right, like सिर्फ दो पाकिस्तानी हैं जो मेरे पूरे बैच में थे, सिर्फ दो, and about 95% of my class is Chinese because they're सो गुड उनको सिक्स सिक्स क्लास में नहीं, सॉरी, उनको एलिमेंट्री स्कूल में दे आर टॉट थिंग्स लाइक कोडिंग एंड एआई, इनका हम जिसका हम सोच भी नहीं सकते. देयर आवर्स देयर एजुकेशन सिस्टम इज सो रोबस्ट, इट्स सो structured कि हम लोग शॉक हो जाते हैं. वी कांट रीच दैट लेवल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यू माइट बी द फाइनेस्ट और द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, जब भी आप यहाँ पे आते हैं आप वहाँ पे स्टार हो सकते हैं, बट जब आप यहाँ आते हैं यू आर रिड्यूस टू दैट वन स्टूडेंट जिसको who has to start over. Because again, matlab, the level of competition, the level of intelligence that I have seen is out of this world. And honestly, like it's difficult, but it's also like very rewarding and challenging as well. क्योंकि you learn to adjust in that environment. So that's the education part of it. But the other thing that I perhaps underestimated was the effect of वेदर एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि मैंने शायद इतना ज़्यादा उसको कंसिडर नहीं किया था. बस मेरे ऊपर ये सवार था कि आई हैव टू गेट टू दिस यूनिवर्सिटी एंड ठीक है मुझे ये वाली स्किल चाहिए, ये वाला ये बस चाहिए, इस तरह का लाइफ स्टाइल चाहिए. बट वॉट यू डोंट आई गेस एस्टिमेट प्रॉपरली इज कि आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना इन्फ्लुएंस करते हैं. सो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे इतनी लाइक इट वाज सो कोल्ड, द वेदर वाज सो कोल्ड. और यहाँ पे वैंकूवर का वेदर मुझे बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद जैसा होगा. इट्स नॉट अ लॉट, इट्स वेरी माइल्ड. मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिखा हुआ होगा, लेकिन वो बहुत छोटा लिखा हुआ तो पता नहीं हाँ, चलता. बस मल्टीपल ओकेजन्स पे आई फाउंड माई सेल्फ लाइक जहाँ पे जब यहाँ पे विंड स्टॉर्म आता है ना तो मैं बड़े मुश्किल से आई थिंक बच जाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इनका इट्स सो ड्रास्टिक. जब गर्मियाँ होती हैं तो वो भी ऐसी गर्मी होती है कि द सन इज अनबेरेबल. सो उसका अफेक्ट होता है एंड इट अफेक्ट्स योर मूड एंड मोटिवेशन एज वेल. सो इस तरह की चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. आई थिंक इट्स अ ह्यूज कंसिडरेशन. एंड थर्डली लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जहाँ पे आप रहते हैं, योर रेंट, जो कि वैंकूवर अनफॉर्चुनेटली इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हेयर इन कनाडा, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ एक्सट्रीमली हाई. तो unless you can immediately start off with like a lot of savings and you can earn as much, which is all like you, it takes time. हो जाता है but it takes time, so it becomes very difficult.
सो आई थिंक कि ये वाली चीज़ें दे आर ऑफन अंडर एस्टिमेटेड बट डेफिनेटली शुड बी कंसिडर्ड। टोटली एग्री, टोटली एग्री। द पॉइंट दैट यू हाईलाइटेड कि डेमोग्राफिकली हम कराची से जब जा रहे होते हैं तो हम शायद उन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि ठीक है हम कौन से कपड़े लेके जाएंगे, क्या करेंगे, और the unnecessary facts, ठीक है, because this is how our society look like। और जो लोग भी जा रहे होते हैं, I'm pretty much sure कि वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से ये नहीं पूछते कि what are the real factors over there, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। व्हेन यू आर लिविंग अलोन, ठीक है, सो यू डोंट हैव अ शोफर, ठीक है, यू डोंट हैव समवन हु कैन टेक केयर ऑफ, आपके पास ड्राइवर नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, यू डोंट हैव अ बैकअप यूजली, ठीक है। ठीक है, आपने जो बात कही है, इट्स गुड इनफ दैट व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ आफ्टर अ व्हाइल यू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कि किस तरीके से मैं पैसे कमा सकती हैं और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डायनामिक्स चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ओवरऑल योरसेल्फ, ठीक है। इन इन पाकिस्तान दिस इज लैकिंग वेरी मच, ठीक है। व्हाट आई सी इज अ लॉट ऑफ गर्ल्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे आर पैम्पर्ड इन अ वे कि ठीक है उनके भाई होते हैं, उनके अम्मा अब्बा होते हैं और वो उनको बड़ा पैम्पर्ड रखते हैं, ठीक है यार हम यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आपके पास, यू हैव ड्राइवर्स, यू हैव पीपल हु कैन ड्रॉप यू यूनिवर्सिटी, पिक अप फ्रॉम यूनिवर्सिटी। there are people who can do things like यार मुझे ये चीज चाहिए regarding to my education, that thing is done over there, it's not like that। whether I didn't even like मैंने ये जिंदगी गुजारी नहीं है, but I do have friends who are doing that, and in UAE to be very specific I'm working, but we need to understand the fact कहीं ना कहीं वो होता है। बट आप मुझ में और आप में सिर्फ शायद यही फर्क है कि आप वहाँ रहने के पैसे दे रहे हो और मुझे यहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं, दैट्स द मेन डिफरेंस। और एल्स बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी होती हैं। एंड लाइफ इज टू फास्ट पेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी की हेल्प ले भी नहीं सकते और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज गोना हेल्प यू, हु इज गोना डू देयर वर्क, ठीक है। सो हाउ डू यू मैनेज थिंग, आर यू समवन हु ट्राइज लाइक, आप पहले से प्रिपेयर थे, आप पहले से मैनेजेबल लड़की थे कि ठीक है मैं अपने काम खुद करूंगी, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन पाकिस्तान। टिल द डेट वी हैव दैट मिसकंसेप्शन कि यार लड़की है अकेले कैसे जाएगी, लड़की है ये काम कैसे करेगी, ठीक है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर, बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 4 5 years, यू हैव एन आइडिया कि ठीक है यार, आई हैव टू बी माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क ऑन माई स्किल्स, आई हैव टू मेक, मेरी अपनी कोई एक वर्थ या अपनी एक कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। How do you manage all those things in Canada? Do you think it's tough for girls? सिक्योरिटी वाइज किस तरीके से होता है, क्योंकि जो सबसे मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि भाई नहीं, आपने बाहर अकेले नहीं जाना, जब आप कनाडा मूव होते हैं तो आपको हर काम खुद ही करना है, फिर वो कोई भी चीज हो, ठीक है। यू हैव टू, इट डजंट केयर कि अगर अगले दिन सुबह आपका पेपर है, अगर आपको पता है कि आपको जॉब पे जाना है तो आपको जॉब पे भी जाना है, क्योंकि जॉब पे जाएंगे तो आप पैसे कमाएंगे, वाइस वर्सा सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो। व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू वांटेड टू हाईलाइट कि भाई इन चीजों पे ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जब दिल चाहे आप सो जाएं, आपका जब दिल चाहे आप उठ जाएं, जो पहनना चाहे पहन लें। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऑल्सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट। अ लॉट ऑफ पीपल यूजली डोंट डिस्कस दोज पॉइंटर्स के, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर है वहां से लेके आपका घर कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, कितना पहला आपको उठना है, तैयार होना है, ठीक है। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स? So that's a really good question. Basically, I've, I think मेरा बाहर जाने का plan पहले था. I got into King's College London, और मेरा full plan था 3 years पहले यहाँ पे जाने से पहले. And somehow उस time पे I wasn't आई couldn't make it. कुछ फाइनेंशियल इस तरह के इश्यूज हो गए कि मैं नहीं जा सकी, एंड माय फैमिली आल्सो was they didn't agree. But now I haven't moved here alone. Like I'm with my husband, and But still, I think like for example, it's totally fine that you're with your husband, but you got the point. Na? There are people yeah. there might be something, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इसी में एक चीज ऐड करूं, इट्स नॉट पाकिस्तान कि आप ये सोचो कि ठीक है मैं घर पे बैठी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा शौहर काम करेगा, ठीक है। इट्स नॉट पाकिस्तान के जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा हो और 10 लोग घर में आराम से बैठ के खाना खा सके, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि आप
उसको उस तरीके से सोच ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पाकिस्तान में आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपकी वाइफ को कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि आप उनको पता है कि आप इतने स्टेबल हो कि आप कर सकते हो अकेले। इन Hmm. आउटसाइड पाकिस्तान इज नॉट पीस ऑफ केक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू Not at ऑल्सो। all. Not at all. And you're right. I get your point. Even though I'm with my husband, like honestly, the amount of work जो हमें the amount of independence जो पाकिस्तान में होती थी compared to जो यहाँ पे होती है, उसके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. And that's because you cannot depend on anybody. I was someone who would take care of my own things. Like मेरे husband कराची में रहते थे, मैं लाहौर में पहले. तो वो आई वुड टेक केयर ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन, बट यहाँ पे आके इट हैज़ मैग्नीफाइड इन अ सेंस के यू हैव टू डिपेंड ऑन योर पार्टनर. इट हैज़ टू बी अ 50-50 पार्टनरशिप. आप ये नहीं कर सकते कि बिकॉज द वर्कलोड, लाइक द वर्कलोड ऑफ माई मास्टर्स प्रोग्राम वाज सो मच कि उसके अंदर मैं ये नहीं कर सकती थी कि आई कुड स्पेंड सो टू मच टाइम कुकिंग, मे बी टू मच टाइम वॉशिंग द डिशेज. उसके अंदर भी इट हैज़ टू बी डिवाइडेड, वरना वो हो ही नहीं सकता. So planning before like planning ahead, it is something जो कि मैंने यहाँ आके सीखा. It has disciplined me यहाँ पे आके. And दूसरा, like loneliness is a huge factor. अगर आप साथ ना हो या फिर अगर आप अब आ जाते हैं, बाहर आते हैं, तो you can't be completely dependent on your partner. और यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप बस जाएंगे एंड यू कैन गो बैक टू योर हाउस अगर आपको कोई कंफर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए. So you have to take care of your emotional independence as well. So for that, what I have started doing is because it's very safe. Vancouver is relatively much safer than other countries. Especially पाकिस्तान से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कुछ देर कराची भी शिफ्ट हुई थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू सम मॉर्निंग रन्स. लेकिन मुझे ना हमेशा ये होता था कि ओ वहाँ पे तो बहुत इट्स नॉट सेफ, तो मुझे मैं जा भी सकती हूँ या नहीं. बट यहाँ पे I've made it a habit कि like starting my day early and going for morning runs and making sure कि मैं अपने आप को इतना टाइम दे सकूँ कि I'm redirecting that extra energy or any energy that I have towards things जो कि I could not do there in Pakistan. But it's so important to be organized. It's so important to prioritize. Like you can't just spend the entire day कि आप एक आपने डिश बनाने में लगा दिए हैं. And also like I think I've become a good cook over here. So उसका भी काफी फायदा हो गया. हाँ. आपके पास कोई और वो नहीं होता। आई व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आई पर्सनली say this to everyone, कि if you have the opportunity, go live outside Pakistan. That make you a perfect human being. At least they know कि सुबह उठने से क्या फायदा होता है, how your sleep cycle works, how the time management works. Also, over their relatives and वो जो एक तरीके की हसल रहती है ना कि यार हमें नहीं पता कभी भी कोई मेहमान आ सकता है, हमें नहीं पता कि हमारा टाइम टेबल दूसरे के टाइम टेबल के हिसाब से मैच होगा नहीं होगा, बस लेकिन हमें करनी है चीजें, एंड देन वी हैव ओकेजन एवरीथिंग प्लस एंड माइनस दोनों जगह। आई वोंट बी सेइंग कि पाकिस्तान में रहने के अपने फायदे नहीं है, इट्स ऑलवेज गुड टू बी विद योर फैमिली, बट you are you have to like what I say, you have to pay the price of living somewhere else. Apart, yeah, definitely. uh, with that, we wanted to move the conversation to another topic that I wanted to discuss is nowadays what I see is students usually don't have a roadmap of how to do things in a certain way. I'm pretty much sure there are people who are doing jobs and they don't have a vision कि यार हमें अगले 5 साल बाद करना क्या है, क्योंकि in Pakistan you don't rely on a job कि ठीक है. For example, last 3-4 years, there's a very big boom of IT sectors, startups, and everything. But वहाँ पे stability नहीं है. It's not like working for a big MNC, and no one has like all this like degree from big universities. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ तो शायद पाकिस्तान का 10% ही इन बिग यूनिवर्सिटीज में पढ़ता होगा, बट 90% इज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर साल एटलीस्ट हर साल में मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार बच्चे पर
क्या कहते हैं, पर इंटरेस्ट वाइज या पर कोर्स वाइज, अगर फील्ड की बात करें, पर फील्ड वाइज 5-6 हज़ार बच्चे तो ग्रेजुएट होते होंगे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर पाकिस्तान उस हिसाब से तो जॉब्स नहीं दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो अरेंज होंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू वांटेड टू हाईलाइट एज एन स्टूडेंट, व्हाट डू यू, व्हाट यू शुड डू, लाइक do you think starting early can be a plus point? Do you think starting on your personal brand makes a difference? Because what I see is getting CGPA or getting a good GPA or good grade is good. It's not like मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ग्रेड अच्छे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, if you wanted to go out study in any other country, तो आपको पता है कि यार आपका वीजा और बाकी सारी चीजें, आपका आपकी आपके जो एडमिशन है वो बहुत सारी चीजें अलाइन होती हैं आपकी जीपी आपके रिजल्ट से, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग, ठीक है। पीपल यूजली फॉरगॉट इन पाकिस्तान के सिर्फ रिजल्ट लाना ही मेन चीज नहीं होती। यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आपका पीआर कितना बड़ा है, कितने लोग आपको जानते हैं। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव, टू गेट अ जॉब इन पाकिस्तान, either you graduated from a very reputed university, either you have a very big PR, or either you have that sort of vibe जहाँ पे आप लोगों को बता सकें कि आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व दैट, ठीक है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, people in Pakistan is spending like 5-6 lakh rupees minimum in a bachelor's. And when they graduated, they are getting like 20,000. I have seen people who are working for 20,000, 25,000, 50,000. With respect to the demographic in Pakistan, जो economy system चल रहा है उसमें it's not how you gonna survive. ठीक है। I'm pretty much sure if someone has like 50,000 rupees of a job in Pakistan, वो शायद ये जरूर सोच सकता है कि मैं अगले साल 1 लाख पे चले जाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाना है तो मैं 50-60 लाख या जो भी अमाउंट मुझे चाहिए वो मैं जनरेट कैसे करूंगा, ठीक है। ग्रोथ प्लान बेसिकली होगा क्या। तो व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू सी के यार, जब आपने ग्रेजुएट करा आपने फॉलो करा, या आपने लोगों को देखा, या कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जहाँ पे लोग लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर आप सही से एक्सेल नहीं कर पाते। आई थिंक जब कनाडा आने का प्लान बना तो इट स्टार्टेड अबाउट yeah 1.5 years पहले before we moved here we started my husband and I started planning and saving up for it तो उसके अंदर a huge part of it was knowing कि कहाँ जाना है and shortlisting that process was way ahead वो वाली planning it needed to be way ahead तो उसके लिए we decided कि experience in Pakistan was extremely important ताकि we can save up enough for it and then have enough savings हमने calculate किया कि what would we need in Canada full research की कि what are the living expenses and we had enough कि अच्छा 6 months के लिए तो we are well and good another 6 months के लिए अच्छा we have some buffer अगर things don't go our way और जब हम आ रहे थे तो उस टाइम द पीआर सिचुएशन कैनेडियन पीआर सिचुएशन इट वाज लुकिंग रियली गुड क्योंकि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं तो यू गेट एलिजिबल फॉर अ फास्ट पेस वे टू गेट योर पीआर which they cancelled after I got my admission in UBC और उस टाइम वो डिपॉजिट भी पे हो चुका था सो दैट इज समथिंग इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशंस बिल्कुल चेंज होती रहती हैं इन दीज कंट्रीज एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू प्लान फॉर इट and it's so important to take care of these things like I have friends जो कि यूरोप वाली साइड पे गए हैं और वहाँ पे भी इनका यही वेस्टर्न कंट्रीज का यही इशू है कि they start attracting a lot of talent from our countries and we send them our good people good human capital लेकिन फिर एकदम से political situations change हो जाती हैं and people haven't planned for it and then they end up getting stuck I'm sure आपने यूएई में भी experience किया होगा कि a यूएई lot of तो people make that mistake व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यूएई तो शायद लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यूएई इज, आज से 12 साल पहले यूएई इज टोटली डिफरेंट। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि देखें, फाइनेंस इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज,
The political thing that you can't, to be very honest, ठीक है. Hmm. Having a Pakistani passport is not गुड फॉर एनी अदर कंट्री, ठीक है. आप कहीं पे भी चले जाएं, आप यूके में हो, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, आप यूएई में हो, मेरे ख्याल से आप नेपाल या बांग्लादेश में भी होंगे ना, तो आपको कोई ना कोई तो मसला फेस करना पड़ेगा. उसके लिए आपको बैकअप प्लान रखना पड़ता है, ठीक है. यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप प्लान. लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, यूएई आ जाएंगे तो चीजें सेट डाउन हो जाएंगी, ठीक है. ये सोचते सोचते इंडिया से भी हजारों लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, भूटान से भी आते हैं, XYZ और करीब की जितनी कंट्रीज हैं वहां से आते हैं, क्योंकि आज से 5 साल पहले वो यूए इज बेसिकली वर्ल्ड हब. वहाँ पे यू सी फैंसी थिंग्स, यू सी फैंसी कार्स, यू सी फैंसी बिल्डिंग, और आप उससे एडमायर करने लग जाओ, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, दिस इज हाउ लाइफ इट इज. बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड के लोग आपको मेरे ख्याल से उस तरीके से जज करते हैं जिस तरीके से आप पोर्ट्रे करते हो, ठीक है. लोगों को लगता है अगर आपकी एक पिक्चर आपने इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे डाली है, दिस इज हाउ लाइफ इट इज, ठीक है. आई पर्सनली बिलीव कि ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं बाहर से, उनको तो ग्रेजुएशन की रील बनानी चाहिए, क्योंकि जो 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने का भी कोई कोर्स कर रहा है ना, उसने इतना कुछ झेला होता है कि उसके बाद उसका बनता है कि वो तस्वीर डाले. उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इन पाकिस्तान व्हाट यूजली, मैं अगर अपनी बात भी करूं, मैंने अपनी कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं करी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप वैसी इतनी सारी चीजों में लगे हुए होते हो, और ठीक है आप बोलते हो सही है यार, लेट्स कंटिन्यू समथिंग एल्स, ठीक है. और दूसरी तरफ अगर आप कहीं बाहर होते तो यू रियली वांटेड टू शो दैट, क्योंकि वो मैटर करती है. अज्यूमिंग द फैक्ट कि बहुत सारी मर्तबा, तो अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज के तो नाम उनकी लिस्ट में ही नहीं होते, ठीक है. एंड यू आर लाइक That's कि true. वेयर डिड वी लाइक, हमने कहाँ से कर ली ग्रेजुएशन, ठीक है. हाउ वी गोना से कि, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी IB alums, सो आई एम प्रीटी मश्योर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो लोग सोचते होंगे कि यार हम उनको बताएंगे क्या, हमने ग्रेजुएशन Hmm. करी कहाँ से. तो क्योंकि वो अगर अपने पोर्टल पे देखेंगे तो उनके पास तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि आप चले पाकिस्तान से, तो लेकिन पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज है, वी डोंट नो दैट, ठीक है. इधर वे आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कितनी भी रैंक करती हो, हर यूनिवर्सिटी रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 पे चल रही होती है, ठीक है. तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि चीज़ों को बिफोर हैंड सोचना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके प्लान के हिसाब से चले, तो आपके पास प्लान B, C, D, E, F, Z तक होने चाहिए, कि अगर कहीं पे भी कोई चीज़ मैटर करती है तो उसमें मसला ना हो. अ, Exactly. अ, इसके अलावा, like, I also wanted to point out, like, the personal brand thing that you were talking about, कि it's मतलब एक तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और प्लानिंग की बात हो गई, हैविंग योर गोल्स इन माइंड एंड देन ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स देम विद अ बैकअप प्लान. बट दूसरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेकिंग श्योर कि जो आपने बीच में चीज़ें की हैं, all the achievements that you've gathered, whether it's in Pakistan or whether it's abroad in your education, it is so important to have a presence online, especially on LinkedIn. I think इसको लोग काफ़ी underestimate करते हैं. यहाँ पे मैंने what I started doing was कि UBC में we used to do all these school projects, और वो असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा होती थी, एट अ पॉइंट लाइक एवरीबडी वाज दे वर लूजिंग देयर स्लीप, वो पूरी पूरी रातें जाग जाग के कर रहे थे, एंड उनको समझना भी बहुत बड़ी बात थी. सो दिस वाज अ न्यू स्किल वी वर लर्निंग. बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना उनको यूज़ करना शुरू कर दिया एज माय पर्सनल केस स्टडीज. So I started making a portfolio out of those assignments. और सो वट एवर आई डिड, आई यूज टू पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू इट. उसके अंदर जो नया टूल सीखा, जो उसको किया, ठीक है. आई मेड अ उस टाइम आई स्टार्टेड विद द गूगल ड्राइव फोल्डर, लेकिन फिर उसके बाद ना मैंने उसको आई कन्वर्टेड इट टू अ वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता करके. You can also see it, by the way, it's on the LinkedIn page, and then I started posting about it. अब काफ़ी लोग उसको most probably, like, not everybody will comment on it. You might not get like 1,000 likes या फिर उसके impressions शायद इतने ज़्यादा ना हो जितने आपने सोचे हैं. But people and recruiters are still looking. Even if they're not saying anything, they're looking. So after a point, जो भी चीज़ें मैंने की थी, I used to, like,
I started with, while I was at Levi's, जब मेरे पास access नहीं थी to all these projects, I started with doing personally, मतलब adding projects from YouTube, उनको learn करना end to end कैसे करते हैं. और फिर ये वही projects हैं which were taken to the next level when I did my masters, and then I kept adding to my portfolio. और अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी basis पे मतलब randomly people would show up and they would ask like, can you do this for me? um, तो पर्सनल ब्रांड की बहुत बहुत पावर है. आई रिकमेंड एवरीबडी टू डू दैट. यहाँ पे ग्रेड्स ऑनेस्टली कनाडा में आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स. जो कंसल्टेंसीज हैं पाकिस्तान और यूएई में, आई थिंक बहुत बिग डील हैं और वहाँ पे मैटर भी करते हैं. बट यहाँ पे आई थिंक के पोर्टफोलियो होना, एक्सपीरियंस दिखाना, वॉलंटियर वर्क होना, दैट्स समथिंग जिससे रेलेवेंस उनकी बिल्ड होए, दैट्स समथिंग दैट मैटर्स मोर. So it's very, very important to have that, and I recommend everybody to build a portfolio. ये तो बिल्कुल एग्री एग्री ऑन योर पॉइंट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज स्टेबल कंट्रीज में फायदा यही होता है कि दे जस्ट नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन रोबोट्स. इफ दे वांटेड टू इन्वेस्ट टाइम इन रोबोट्स, उनको अगर कोई चीज ऑटोमेट करवानी है, तो आई थिंक AI robots are much better example than human beings. अगर उनको कोई चीज यही करवानी होती तो वो उनसे करवा सकते हैं. बट इट्स गुड टू हैव पीपल हु अंडरस्टैंड कि यार आपको अपने स्किल सेट्स को बेचना कैसे. ठीक है, पाकिस्तान में दिलो जान से मेहनत की जा रही है कि लिंक्डइन को किसी तरीके से टिकटॉक शादी.com बना दिया जाए, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग. वो अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो. यूजली पीपल थिंक के हमें सर्टेन पोस्ट पे या सर्टेन जो भी हम चीज कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं इसकी भी एग्जांपल दूं गपशप सेशन की, आई स्टार्टेड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि यार यू आर नॉट गेटिंग लाइक्स. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर लाइक्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ हमारे सेशन से किसी एक बंदे को भी फायदा होता है, सो आई हैव डन माई जॉब, माई गेस्ट स्पीकर डन 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 देयर जॉब. ठीक है ना, क्या जरूरत है, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को स्टार बनना है. नॉट एवरी वन कैन बिकम इरफान जुनेजो, मोरो और एनी अदर सेलिब्रिटी. दे आर गुड व्हाट दे आर डूइंग. मे बी आपको हमेशा हर चीज में उनका गुड नहीं होना गोल ही था. डिफरेंट है. या द पॉइंट इज हम्म. के लोग देखते हैं. ठीक है, एटलीस्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, पोर्ट्रे योर सेल्फ, मार्केट योर सेल्फ इन अ वे कि जो स्पेसिफिक लोग हैं जिनको स्पेसिफिक चीजें चाहिए, उनको पता होगा ना, वो देख रहे हैं. मे बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बात करी वेबसाइट की, ठीक है, यू कैन ट्रैक योर वेबसाइट के कितने लोग आ रहे हैं बार बार. ठीक है, बट हो सकता है कि वॉट वॉट नॉट के एक साल बाद उस पर कोई रिक्रूटर आया, रिक्रूटर को कोई चीज अच्छी लगे एंड दे कैन हायर यू. एंड एक दो साल के अंदर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक दो साल बाद पता चले, रिक्रूटर ये बताए कि यार आपने जो वेबसाइट डाली थी उसकी वजह से मैंने आपको हायर कर लिया. जो आपने ये पोस्ट डाली थी या जो आप ये काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से शोकेस कर रहे हैं, वो हमें उस वक्त जरूरत थी, हमने हायर कर लिया. So it's totally agree with the point. I think we have discussed a good pointers. The last I think I need to discuss is, agar Resham, if you wanted to say any two, three pointers to any of the audience, it can be about studies, can be about experience, any two, three things that is important in life that you are doing, maybe you learn from someone else, so people can also follow that. That's the last thing that I wanted to ask. I think this is a general life advice जो कि that I personally think it helped me a lot, and I would, I think कि यहाँ पे भी in a very competitive environment it can keep you going. और वो ये है कि like it's immediate gratification की हमें बहुत आदत हो जाती है in Pakistan. I think ये बहुत बड़ा concept है कि I do something, I work for it और मुझे फ़ौरन मिल जाए. I'm kind of entitled to it. This is the kind of life that we've lived. क्योंकि हमें इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉल इन आवर लैप्स थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू जनरेशनल वेल्थ या जो भी यहाँ पे कल्चर बन जाता है. बट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज समथिंग जो कि बाहर जाके या फिर फॉर अ ग्रेटर कॉज आपको नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, नहीं मिलती. योर फोकस शुड ओनली बी पुटिंग इन योर एफर्ट एंड देन कीप ऑन पुटिंग इट. इवन अगर आपको वो रिजल्ट्स अभी फ़ौरन नज़र नहीं आ रहे, but have faith in the process, and don't let anybody tell you you can't do something. I mean, not even if it's yourself. And then keep working towards it until आपको आपकी बस नहीं हो जाती, आपको मिल नहीं जाता. And you need to have that faith.
कि ठीक है, it's there for me, but I have the patience, I have the respect to wait for it, and it will come in its due time. तो आई थिंक इसके अंदर परसिस्टेंस जब बाहर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट्स डिफिकल्ट टू सेटल इन, इट्स चैलेंजिंग टू सेटल इन, बट हैविंग दैट फेथ कि अच्छा हाँ ठीक है, आई हैव समथिंग, I will get it in its due time. I'm working towards it, but I am working towards it. And the way to do it is like put in your all. So yeah, that's advice number one, I must say. Any other advice that you wanted to say? The other is like very academic in nature. I think for people who are looking for jobs, for people who are navigating their path right now, I think, like I said, like online presence, LinkedIn presence, even if you don't feel like it, हो सकता है आपका बहुत बुरा दिन जा रहा हो, it's still very important. People are still looking. So keep building that brand. अगर बाकी नहीं देख रहे तो अपने आप को ही देख के खुश हो जाएं कि these are your achievements, and be proud of them. Keep building them and see what you need to do to have that roadmap in your hand. So keep your LinkedIn very active, and stay alive. Like किसी को भूल ना जाए कि आप भी यहाँ पे एग्जिस्ट काम कर, तो करते आपकी आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. exactly, Agree exactly. on that point. I think these two are very good advice, and I'm happy to have this session. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things from this session. Thank you so much for your time, Resham. Thank you so much. Thank you so much for having me, Amar. This was actually great, and I think it's great that you're having people and matlab dispensing all this knowledge. I think everybody needs that, or while they're navigating their career path. So great work.